Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 8, continuation of second chapter, electric potential and capacitance. Today we are going to solve numerical based on capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor. On that topic we are going to solve numerical. So I am going to start with the first question. Before starting with the first question, just we'll discuss certain terms. Like when we are talking about two plates, what's the capacitance? So area of the plate is represented by this one, this capital A. Separation between plate is given by small d. And what's the value for capacitance? Capacitance for this condition will be what? A epsilon naught upon small d. But you imagine parallel plate capacitor, same criteria. Area of plate will be capital A and separation between plate is given as small d and it's containing dielectric K. So what will be the equation? It will be C is equal to A epsilon naught K upon small d. So it's a capacitance between parallel plate capacitor containing air, and this is the capacitance of parallel plate capacitor containing dielectric. Okay. So we'll start with question number 1. So what is the question? Question is, diagram I have already drawn over here, and question you can see that side. So question is given as total two parallel plate capacitors X and Y. Two parallel plate capacitors X and Y have the same area of plates and same separation between them. Means there are two capacitors, one is X and second is Y, and they are having same area. So suppose that if I am talking about the first capacitor, that is the Cx, and second capacitor I am talking about the Cy, and if I am going to write in this way, so they are saying they have a same area. So both the capacitor will have same area. What next? Both the capacitor will have same area, same separation between them. So separation between them is represented by small d, same separation, and epsilon naught will come in both cases. Correct? Then they are saying X has air between the plates. So X has air. अगर आप ना मीडियम के हिसाब से ले लो, तो अगर X के पास एयर होगा मीडियम में, लाइक यहाँ पे जैसे K है ना, K की जगह पे आपको क्या मिल सकता है? K की जगह पे आपको ना ER भी मिल सकता है. So where K is called as the dielectric constant. K is called as the dielectric constant. And what do we call to ER? ER is also dielectric constant, or it can be considered as relative permittivity. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है. दोनों का मतलब सेम है. So dielectric constant और relative permittivity will represent same thing. So they are saying X has a air in between plates. So अगर ना K का वैल्यू 1 होगा किसके लिए? फॉर एयर. अगर आप इमेजिन करो, इसके अंदर जो हमने मीडियम इमेजिन किया, आपको मीडियम क्या है? एयर है. So air की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. तो K का वैल्यू 1 हो गया. तो this is the only condition for Cx. But what is for the second part? While Y contains a dielectric medium of ER is equal to 4. जो यहाँ पे K का वैल्यू है वो ER है और उसका वैल्यू कितना है? 4 है. जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 4 है. So A you have written, epsilon you have written, and D you have written. फर्स्ट केस में यहाँ पे एयर होता है, इसके लिए 1 हो गया. बट सेकेंड केस में K और ER का वैल्यू कितना दिया इन्होंने? 4 दिया हुआ है. इनटू व्हाट? 4. सो आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट एंड सेकंड को रिलेट कर सकते हो. तो cy का वैल्यू क्या होगा? A epsilon अपॉन स्मॉल d का वैल्यू किसके इक्वल है? Cx के इक्वल है. तो दिस वैल्यू कैन बी 4Cx. अब हम आ जाते हैं प्रॉपर क्वेश्चन में. क्वेश्चन में क्या दिया है? कैलकुलेट. ये तो है जो डेटा है उसके बेसिस हमने ये निकाला. Cx का वैल्यू ये है और Cy का वैल्यू 4Cx है. अब जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैराड. तो बोल रहे हैं कि आपको ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, मतलब Cx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर आपको Cy की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. और क्या दिया इन्होंने? इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैराड. तो अब ये देखो, ये दोनों जो वैल्यूज है कैसे कनेक्टेड है? दीस टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज. तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा? Cs होगा, जिसकी वैल्यू क्या दिया इन्होंने? 4 माइक्रोफैराड. फाइन. अब क्या होता है? इसको सिंप्लीफाई करना है. तो Cx और Cy को सीरीज में कनेक्ट किया, जिस वजह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड आ रही है. हमें कैसे ऑब्टेन करना होगा वैल्यू? तो आप ना सीरीज का फॉर्मूला लगाओ. सीरीज के फॉर्मूले के लिए जो डायरेक्ट टेक्निक में वो बता रहा हूं.
जैसे फर्स्ट कैपेसिटर इनटू सेकंड कैपेसिटर अपॉन फर्स्ट कैपेसिटर प्लस सेकंड कैपेसिटर वाला हम कॉन्सेप्ट लेंगे। तो सी एस इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट कैपेसिटर इनटू सेकंड कैपेसिटर अपॉन फर्स्ट कैपेसिटर प्लस सेकंड कैपेसिटर। सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर फर्स्ट कैपेसिटर? फर्स्ट कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, सी एक्स की वैल्यू को हमने सी एक्स रहने दिया, सी वाई का वैल्यू क्या है 4 सी एक्स है, तो सी एक्स को सी एक्स रहने दिया, 4 सी वाई को हमने क्या किया 4 सी एक्स लिखा, और यहां पे क्या होगा अपॉन सी एक्स विल रिमेन सी एक्स बट सी वाई विल बी व्हाट 4 सी एक्स, सी वाई का वैल्यू सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं। फिर ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया इंटू क्या होगा सी एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन ये क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस 4 सी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सी एक्स। तो सी एक्स और सी एक्स की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सी एस का वैल्यू कितना था हमारे पास, सी एस का वैल्यू है 4 माइक्रोफेराड, और वहां पे वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4 आया, सी एक्स आया अपॉन क्या है 5 है, तो यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा। देन फाइनली व्हाट्स द वैल्यू फॉर सी एक्स, तो सी एक्स का वैल्यू क्या होगा 5 यहाँ पे आ गया, तो सी एक्स का वैल्यू होगा 5। सो अब यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यू माइक्रोफेराड में है, तो ये सी एक्स का वैल्यू किसमें होगा माइक्रोफेराड में मिलेगा आपको, तो सी एक्स कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको मिल गई। कैन वी गेट फॉर द सी वाई, सी वाई का वैल्यू क्या 4 सी एक्स है, तो आप लिखोगे सिंस सी वाई इज इक्वल टू 4 सी एक्स देयरफॉर 4 इंटू 5, तो 4 5 से कितना हो गया 20 माइक्रोफेराड। सो वी गॉट वैल्यू फॉर व्हाट सी वाई आल्सो, तो सी वाई का वैल्यू भी हमको मिल गया। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एक्स एंड वाई। जो एक्स एंड वाई प्लेट्स है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा व्हेन यू ऐड विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल गिवन टू द सर्किट। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने, सेकंड पार्ट में दे आर सेइंग फाइंड द पोटेंशियल फॉर एक्स एंड फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब क्या होता है कि हमें डायग्राम से क्या पता चलेगा, डायग्राम से वी कैन से कि जो एक्स का पोटेंशियल होगा, नॉर्मल एक्स होगी, एक्स का जो पोटेंशियल होगा वाई का पोटेंशियल होगा व्हेन यू ऐड सीरीज में ना विल बी इक्वल टू व्हाट 12 वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या करना, वी एक्स और वी वाई का कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। आइदर यू गेट वी एक्स का कोई वैल्यू हो, वी वाई का कोई वैल्यू हो, ठीक है, या वी एक्स का वैल्यू हो, वी वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी एक्स हो, या वी एक्स ही रहे, वी वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स हो, या एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी वाई हो, कोई भी कंडीशन होना चाहिए। यहां पे या तो रिलेशन टाइप में हो या तो उनकी वैल्यूज हो। यहां पे हमें कोई आइडिया मिल लेगा। तो अभी हम देखते हैं ना कि अगर हम इस कंडीशन में लेते हैं कैपेसिटर और ये इनको अगर हम रिलेट करते हो, तो जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस के लिए, चार्ज और पोटेंशियल को जो रिलेट करे तो सीवी इज इक्वल टू क्यू, जो कैपेसिटेंस को पोटेंशियल को रिलेट करे तो सीवी इज इक्वल टू क्यू। तो यहां पे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं जा रहा हूं, तो पोटेंशियल की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने यहां पे लिया हुआ है, और एक टर्म है क्यू। सो इनमें से कोई टर्म है जो इस डायग्राम के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। तो कौन सी वैल्यू सेम होगी, एक तो कैपेसिटेंस सेम नहीं होगा, पोटेंशियल भी सेम नहीं होगा, चार्ज क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है। ठीक है, तो आप मेंशन करोगे सिंस सी एक्स एंड सी वाई आर इन सीरीज, ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो होगा ना चार्ज एक्स के अंदर होगा, वही चार्ज किसके अंदर होगा वाई के अंदर होगा, बराबर। द अमाउंट ऑफ चार्ज इन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। हमने लास्ट क्लास में इस चीजों में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल चार्ज होगा और ईच कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो क्या होगा सेम होगा। और जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो क्या है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है सी वी होता है। तो अगर आपने क्यू एक्स के लिए ले रहे हो तो क्यू एक्स के लिए क्या होगा सी एक्स होगा इंटू वी एक्स होगा, इक्वल टू वाई के लिए ले रहे हो तो क्या होगा सी वाई होगा एंड वी वाई होगा, सी वाई एंड वी वाई। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। सो वैल्यूज किसका पुट करोगे आपको एक्चुअली रिलेशन निकालना वी एक्स एंड वी वाई का, तो हमने वी एक्स एंड वी वाई को यही वी एक्स एंड वी वाई को इस साइड ले लिया, ये क्या होगा सी वाई अपॉन क्या होगा सी एक्स। तो सी वाई का वैल्यू इसमें किसका रिलेशन को पता है, तो सी वाई का वैल्यू या तो आप वैल्यूज कम में रखो या डायरेक्टली वैल्यू रख दो। सी वाई का वैल्यू कितना है 20 है एंड सी एक्स का वैल्यू क्या है 5 माइक्रोफैराड है। तो सी वाई का वैल्यू को 20 मिला है, सी एक्स का वैल्यू कितना मिला हमें 5 मिला है। तो कैंसिलेशन के बाद वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ये हो गया इक्वल टू 4। तो इससे हमें क्या मिलेगा वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 4 टाइम्स वी वाई हो जाएगा। अच्छा ऐसा कंपल्सरी है कि आपको 20 एंड 5 करके पुट करके आपको निकालना था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सी वाई की वैल्यू क्या थी, सी वाई की वैल्यू 4 सी एक्स था, तो इसको ना और ऐसे भी लिख सकते थे
ये जो सी वाई का वैल्यू उसको हम क्या लिखते हैं 4 सी एक्स लिखते हैं अपॉन सी एक्स लिखते हैं। कैंसिलेशन के बाद भी वैल्यू क्या होता 4। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज दिस रिलेशन और उनकी वैल्यूज पुट कर लो, बट हमें रेशियो मिल गया, ठीक है, रेशियो और रिलेशन मिल गया। सो अब क्या करना है, इस वैल्यू को ले लो आप इक्वेशन नंबर 2, अब इसको आप पुट कर दो, किसमें पुट करोगे, नाउ पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हो तो क्या क्राइटेरिया होगा, सो वी एक्स का वैल्यू क्या हो गया 4 वी वाई हो गया, करेक्ट। या आपको मेंशन करना तो मेंशन कर दो यहां पे पुट, या मैं यहां से मेंशन करता पुट, किसको पुट किया हमने, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी एक्स का वैल्यू क्या हमारे पास 4 वी वाई है, और वी वाई का वैल्यू वी वाई रहेगा, और क्या हो गया 12 हो गया। तो 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा 5 वी वाई हो गया, विच इज इक्वल टू 12। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर वी वाई नाउ, तो वी वाई का वैल्यू हो गया 12 अपॉन 5, क्या होगा 5 2 जा एंड 4 जा, तो वी वाई का वैल्यू होगा 2.4 वोल्ट। अब इसको क्या कर सकते हो आप, इसको पुट कर सकते हो इक्वेशन 1 में। सो पुट वी वाई इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिलेगा आपको वी एक्स प्लस 2.4 इक्वल टू क्या होगा 12। तो वी एक्स का वैल्यू क्या हो गया 12 माइनस 2.4 दैट इज व्हाट 9.6। अच्छा एक और चीज आपने दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, या तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या ये पॉइंट के बाद क्या हो सकता है और, ये इसको दूसरा ऑप्शन में बता दो। और क्या मेथड है आपको, यहाँ पे वीएक्स का वैल्यू ना वी वाई का वैल्यू बता दो, वीएक्स का क्या है, वीएक्स इज व्हाट 4 वी वाई, तो ये 4 हो गया, वी वाई का वैल्यू क्या है 2.4 है, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 9.6 वोल्ट। गॉट इट। सो ये आप ना कोई भी मेथड फॉलो कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, आप यहाँ पे Vx एंड Vy का रिलेशन निकालेंगे, आइदर यू कैन पुट वैल्यू फॉर Cy एंड Cx, या उनका रिलेशन यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो Vy का वैल्यू मिला है उसको उस इक्वेशन में पुट करके निकालो, या नहीं तो ये जो रिलेशन है उसको यूज कर लो। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछा इन्होंने, ठीक है, तो मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूं, एनर्जी की थर्ड पार्ट में यहां सिंप्लीफाई करता हूं। एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, एनर्जी का रेशियो इन द सेंस व्हाट एवर एनर्जी यू आर हैविंग इन एक्स अपॉन एनर्जी इन वाई। तो क्या होगा यू एक्स अपॉन यू वाई का क्राइटेरिया क्या होगा, यू एक्स अपॉन यू वाई, तो ये हो गया हाफ हो गया सी एक्स इंटू वी एक्स का स्क्वायर अपॉन ये हो गया हाफ सी वाई इंटू वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या हो गया, आप यहां पे हाफ और हाफ को कैंसिल कर दो। सी एक्स का वैल्यू अगर आप वैल्यूज के टर्म में भी पुट करना है तो कर सकते हो, आइदर यू कैन पुट दीज वैल्यूज और यू कैन यूज रिलेशन, दैट्स अप टू यू। तो मैं रिलेशन से भी बता दूं, वैल्यूज पुट करके भी बता देता हूं। तो सी एक्स की वैल्यू को सी एक्स ही रखेंगे हम, ठीक है, बट सी वाई की वैल्यू क्या होगी 4 सी एक्स होगा, है ना, हमने सी वाई की वैल्यू पुट की है। और यहां पे वी के टर्म में क्या होगा, वी एक्स का वैल्यू हमारे पास, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वी एक्स का वैल्यू क्या है, ये क्या है इनटू क्या होगा 4 टाइम्स वी वाई रेज टू 2, करेक्ट, इनटू ये क्या है वी वाई स्क्वायर, को हम वी वाई स्क्वायर ही रहने देते हैं वैसे ही। तो अब क्या हो जाएगा यहां पे यू एक्स अपॉन यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स इंटू 4 का वैल्यू क्या होगा 64 इंटू 4 16, देन वी वाई रेज टू 2 अपॉन ये 4 की वैल्यू 4 ही होगी, सी एक्स का वैल्यू होगी सी एक्स इंटू वी वाई स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर कैंसिल, सी एक्स कैंसिल एंड 4 will cancel with this, so 4:1. Got it? या अगर मान लो कि मैंने ये रिलेशन यूज करने की बजाय मैं दूसरा बेगमेंट आगे वैल्यूज भी लेता तो क्या होता, और यू एक्स अपॉन यू वाई हाफ सी एक्स वी एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ सी वाई वी वाई स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल होगा। सी एक्स का वैल्यू कितना है, सी एक्स का वैल्यू है 5 और सी वाई का वैल्यू है 20, ये होता है 5 और ये हो गया 20, ठीक है, इनटू वी एक्स का वैल्यू कितना मिला हमें, वी एक्स का वैल्यू मिला 9.6, उसका स्क्वायर तो 9.6 इंटू 9.6, और ये कितना है 2.4 ना वी वाई का वैल्यू, वी वाई का वैल्यू 2.4 इंटू 2.4, सिंपल सी बात है 2.4 4 जा 9.6 होगा, 2.4 4 जा 9.6 होगा, 5 4 जा 20 होगा, 4 को कैंसिल करेगा, सो क्या होगा 4:1 बच गया। तो एनर्जी इन एक्स टू वाई विल बी व्हाट 4:1, ठीक है। सो मैंने क्या किया यहां पे कैपेसिटेंस के लिए कोई इशू नहीं है, बट ना पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए भी आपको 2 पैटर्न मिलता है,
जब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो इक्वेशन 1 में, या नहीं तो आप रेशियो वाली वैल्यूज है या कंपैरिजन वाला वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा, आप रिलेशन वाली वैल्यूज यूज कर सकते हो या डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनर्जीज। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस है या काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है जो इस टॉपिक पे बेस्ड है। सो अभी देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पैरेलल प्लेट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है। सो इफ यू सी वेरी क्लियरली, ये लेंथ है इसके पास, ब्रेड्थ है। तो ये नॉर्मली अपने डेरिवेशन, जो भी कैपेसिटेंस का डेरिवेशन क्या था दैट टाइम वी हैव डिस्कस। तो ये आपको वैल्यू मिला, ये है एरिया। तो अभी अगर नॉर्मली क्या होता है डायग्राम में हम ना ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो आपको एरिया रिप्रेजेंट करेगा। तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग लेंथ एंड ब्रेड्थ आपने डायरेक्ट लाइन ड्रॉ किया, दैट्स एरिया। तो जो साइड पार्ट होगा कैपेसिटर का दैट विल रिप्रेजेंट एरिया। कभी कभी क्या होता है एरिया की जगह पे ना सिर्फ लेंथ होता है। तो अगर आप इसको देखोगे ना, एरिया का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, एरिया का वैल्यू इज व्हाट, L इंटू बी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग L इंटू बी डायग्राम में एक लाइन ड्रॉ किया और उसको हमने एरिया से रिप्रेजेंट कर दिया। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ये कैपेसिटर बना हुआ है, ये एरिया है। यहाँ पे कैपेसिटर का ये जो साइड वाला पार्ट है वो एरिया है, ठीक है। और ये है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट जो होगा, ये फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, स्मॉल डी है। तो जो स्मॉल डी की वैल्यू हमने लिया हुआ है यहाँ पे, वो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, इनके बीच का सेपरेशन जो है स्मॉल डी है। तो ये वैल्यू हो गया स्मॉल डी। सिमिलरली यू कैन सी इन दिस केस आल्सो, ये प्लेट है फिर ये प्लेट है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल डी है। तो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन को स्मॉल डी लेंगे और जो साइड वाला पार्ट है उसको हम एरिया ए लेंगे। तो अगर मान लो ये कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने जो लर्न किया वो क्या है, C इज इक्वल टू, ये एरिया पे डिपेंड होता है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट पे डिपेंड होता है। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपने डाइलेक्ट्रिक डाला उस कैपेसिटर के अंदर, तो उसका कैपेसिटर नया होगा, उसको हमने C डैश ले लिया। तो ये होगा A होगा, स्मॉल d होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा प्लस इंटू क्या होगा, K भी होगा। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D किसकी वैल्यू है, जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला है। तो विद डाइलेक्ट्रिक वाला जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, C इंटू के। सो आपको यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि कभी भी अगर आप ना डाइलेक्ट्रिक पुट करते हो किसी कैपेसिटेंस के अंदर, तो वो कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होगा ना, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई किसी कैपेसिटर में आपने डाइलेक्ट्रिक पुट किया तो उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। कितना इंक्रीज होगा, K टाइम्स इंक्रीज होगा। पहले जो भी कैपेसिटर रहा होगा उसमें जितना डाइलेक्ट्रिक डालोगे उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिनेरियो, पावर सप्लाई को कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर आप डाइलेक्ट्रिक पुट करोगे। ये कॉन्सेप्ट हमें आगे यूज करना है काफी जगहों पे। तो मैं डायरेक्टली मेंशन करूंगा कि डाइलेक्ट्रिक आपने डाला, कैपेसिटेंस की वैल्यू है K टाइम इंक्रीज हो जाएगा विद द ओरिजिनल वैल्यू। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट करने से पहले ना एक चीज और यहां पे देख लो कि अगर समझो कि मैंने यहां पे लिया है, तो ये कैपेसिटर है कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, तो ये जो है ना V है। तो रूल के हिसाब से क्या होता है ना कि हम इमेजिन करते हैं कि वन एंड पे जो पोटेंशियल है ना उसकी वैल्यू V है, अदर एंड पे पोटेंशियल 0 है। दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, V माइनस 0 दैट इज V। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाइड है वो V इसलिए क्योंकि इस एंड पे प्लस V होगा, इस एंड पे 0 होगा, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। एक और पार्ट हमको याद रखना है वो ये है कि जब तक ना वायर होगा तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने कंडीशन लिखा है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू I इंटू R का मतलब क्या होगा कि अगर कहीं पे रेजिस्टेंस 0 है तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मान लो अगर ये 5 वोल्ट है तो ये जैसे आप जाते हो ना, ये वायर में हम इमेजिन करते हैं कि ना कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो पोटेंशियल 5 वोल्ट तक रहेगा जस्ट बिफोर द कैपेसिटर। कैपेसिटर के पहले तक 5 वोल्ट रहेगा, तो मतलब ये V है तो कैपेसिटर के पहले क्या है, V रहेगा, ठीक है। सिमिलरली इस एंड पे क्या है, 0 है, तो ये जब तक ये वायर है नॉर्मली यहां तक क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 0 होगा। तो यू कैन सी बिफोर कैपेसिटर एंड आफ्टर कैपेसिटर क्या अलग अलग पोटेंशियल है। सो इंडिविजुअली पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जैसे अभी ना ये नॉर्मल डायग्राम है, तो हमें ऐसा इमेजिन करना होगा, इसके लेफ्ट में जो है ना ये V पोटेंशियल, उसके राइट में क्या है, 0 पोटेंशियल है। ये हमारा हमेशा का अजम्पशन होगा कि जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये V होगा, ये 0 होगा। यहाँ पे भी मैं वही अज्यूम करेंगे, यहाँ पे V होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली व्हेन यू गो इन दिस केस, इस केस में भी इस एंड पे हम क्या अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे V पोटेंशियल होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 पोटेंशियल होगा। तो ये ओवरऑल कैपेसिटर है। और एक और चीज आपको नोटिस करना है कि जो पावर सप्लाई कनेक्टेड होगा वो कौन से पार्ट को, ये पार्ट को कनेक्टेड है। इस पार्ट को हम क्या इमेजिन करें, कैपेसिटर का, इस पार्ट को हम कैपेसिटर का एरिया इमेजिन करें। तो जो पावर सप्लाई कनेक्टेड होता है वो एरिया को कनेक्टेड होगा। द एरिया ऑफ द प्लेट, जो प्लेट का एरिया होगा उस पर्टिकुलर पार्ट को आपने पावर सप्लाई दिया हुआ है, तो पावर सप्लाई सिर्फ एरिया वाले पार्ट को देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पार्ट पे V पोटेंशियल दिया, यहाँ पे 0 पोटेंशियल, इस पार्ट पे आपने V पोटेंशियल दिया, उसके दूसरे एंड पे क्या होगा, 0, क्योंकि पावर सप्लाई ऐसे कनेक्टेड होगी ना।
है ना। तो ये एक ही कैपेसिटर, ऐसे एक वैल्यू दो प्लेट्स है, इस एंड पे हमने V दिया, उस एंड पे हमने कहा था 0 दिया है, तो पावर सप्लाई कनेक्टेड लाइक दिस। तो ये एक कैपेसिटर है यहाँ पे, वैसे एक ओवरऑल एक कैपेसिटर है वो यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या दिखता है कि अगर ये मान लो ये V है, तो अब इस V के केस में हमने इसको V ले लिया और इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, जस्ट बिफोर द कैपेसिटर आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, V मिलेगा। और इस साइड से वैसे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट बिफोर कैपेसिटर क्या, यहाँ पे 0 पोटेंशियल, क्योंकि ये वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हम कंसीडर नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत सारा न्यूमेरिकल है, जब हम ना फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये चीजें हम बाद में भी यूज करने वाले हैं कि जब नॉर्मल वायर है तो वहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो उस वायर के बिगिनिंग में जो पोटेंशियल होगा उस एंड में भी वही पोटेंशियल होगा। अब क्या होता है कि जैसे ना अब इसके बाद ये कैपेसिटर आ जाता है, मान लो ये कैपेसिटर C1 होगा, ये कैपेसिटर C2 होगा फॉर एग्जांपल। तो इस कैपेसिटर से जब ये पास होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहां पे भी है 0। तो अब क्या होता है कि यहां पे जाने यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज अ कॉमन पॉइंट फॉर C1 एंड कॉमन पॉइंट फॉर C2। तो इसका मतलब यहां पे कुछ तो पोटेंशियल होगा, तो उस पोटेंशियल को हमने इमेजिन कर लिया है x। तो अब क्या होता है कि ये V to x के बीच में कैपेसिटर C1 होगा, x to 0 के बीच में कैपेसिटर C2 होगा। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको याद है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग। तो V to x का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 हो गया, x to 0 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, क्यों, क्योंकि वो V से x के बीच का डिफरेंस है, और C2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, x माइनस 0 दैट इज V2। C2 का पोटेंशियल डिफरेंस हमने V2 लिया है, वो कहां का डिफरेंस है, x to 0 का। तो दो अलग पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऐड हो रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा हमने ना सीरीज एंड पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में किया था कि सीरीज में क्या होता है कि जितने कैपेसिटर्स होंगे सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, और सबको ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। तो आप ऐसे नॉर्मली भी देख लो कि इन दोनों कैपेसिटर के बीच में जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, V माइनस 0। तो V और x के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, x और 0 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो सीरीज में आपको याद रखना है कि इस तरीके से, तो सीरीज में डायरेक्टली V से 0 तक नहीं होगा, V के बीच में भी कोई एक पोटेंशियल होगा, फिर उस पोटेंशियल से दूसरा पोटेंशियल। मान लो बहुत सारे कैपेसिटेंस हो गए, लाइक में यहाँ पे कैपेसिटर 1 है, कैपेसिटर 2 है, कैपेसिटर 3 है, कैपेसिटर 4 है, तो उसके पहले V पोटेंशियल है, यहाँ एंड पे क्या 0 पोटेंशियल है। तो मान लो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे z होगा, तो V से x का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, x से y का अलग होगा, y to z का अलग होगा, z to o का अलग होगा, z to 0 का अलग होगा। ये सीरीज का कंडीशन हो गया। अब हम आ जाते हैं पैरेलल पे। पैरेलल में देखो, अगर ये यहाँ पे V पोटेंशियल आया, यहाँ पे 0 पोटेंशियल आया, तो अब ये वायर है, नॉर्मली कोई डिवाइस नहीं इस बीच में, तो यहां तक क्या होगा, पोटेंशियल V होगा। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई वायर नहीं है, तो यहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अब आगे भी बढ़ते हैं। अब देखो ये पार्ट में भी एक नॉर्मल वायर ही है, तो हमने इमेजिन करा 0 होगा, तो यहाँ तक भी पोटेंशियल V ही होगा। ये साइड में भी सेम राइट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V ही होगा। अब ये 0 के लिए भी सेम राइट है, यहाँ तक क्या होगा, 0 ही होगा। ये पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ तक भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो बिफोर कैपेसिटर पोटेंशियल V है, आफ्टर कैपेसिटर 0 है। बिफोर पोटेंशियल कैपेसिटर V है, आफ्टर कैपेसिटर क्या है, 0 है। तो दोनों के लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो जब ये दो कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम क्या लेते हैं, उनको पैरेलल में लेते हैं। तो जो मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता हूं कि जो मुझे ना कैपेसिटर 1 मिलेगा, कैपेसिटर 2 मिलेगा, अगर दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा तो मैं उनको इमेजिन करूंगा कि वो सीरीज में कनेक्टेड है। और वैसे ही अगर दो के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम इमेजिन करेंगे वो पैरेलल में कनेक्टेड है। किस केस में, जब ऐसा डायग्राम होगा, इस टाइप का जब डायग्राम होगा, उस टाइम पे अगर दो कैपेसिटर के लिए कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है मुझे, तो मैं उसको पैरेलल में लूंगा। बट अगर मुझे टू डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है तो मैं उसको क्या लूंगा, सीरीज में लूंगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम ना दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। एज यू कैन सी, मुझे यहां पे ना ये कॉम्बिनेशन में सीरीज या पैरेलल मिलता है, यहां पे सीरीज या पैरेलल मिलता है। आई डोंट नो विच कॉम्बिनेशन इज देयर, बट ना इसमें दो कैपेसिटर्स है, वो कैसे है दो कैपेसिटर्स वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको क्या है इसमें कि वो आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करोगे आप, कि अगर ना अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो सीरीज है, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो पैरेलल है। ठीक है, तो ये पार्ट को मैं रब कर देता हूं। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। ठीक है,
ये कैपेसिटेंस वाली वैल्यूज है वो याद रख लेना। एक और चीज है जो फॉर्मूला याद करने के लिए मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। टेक्निक क्या है? केक डाइट करके आप याद कर लो, केक डाइट। सो इसमें क्या होगा? सी हो गया, ये ए हो गया, ये के हो गया और ये ई हो गया। डाइट डी को आप डिनोमिनेटर में ले लो, तो सी ए के ई एंड डाइट इन डिनोमिनेटर, यहां पे इक्वल टू साइन। जो ई है उसको आप क्या ले लो? एप्सिलॉन नॉट ले लो। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एयर होगा तो यहाँ पे के की वैल्यू को हटा देना आपको, मतलब दैट विल बी 1, के की वैल्यू विल बी 1। के अगर नहीं है तो वो एयर के लिए मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आप देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर रहा होगा, उसके अंदर क्या है? दो हमने अलग अलग डायलेक्ट्रिक डाला। तो दो अलग डायलेक्ट्रिक का मतलब अगर के का वैल्यू अलग होगा तो एक सर्टेन पार्ट के लिए कैपेसिटेंस अलग होगा। मान लो ए सेम है, डी सेम है, सब कुछ सेम होगा, बट ना के का वैल्यूज अगर डिफरेंट है तो कैपेसिटेंस डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें क्या इमेजिन करना है कि यहाँ पे जो दो पार्ट हमको मिल रहा है, सो जो K1 है ना, K1 हमको क्या देगा? मान लो कैपेसिटेंस C1 देगा, और जो K2 है ये क्या देगा? कैपेसिटेंस C2 देगा। अब हमें देखना कि ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है। अब वैसे ही जैसे यहाँ पे होगा ये प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट यहाँ पे होगा, बीच में भी डायरेक्ट डाल दिया आपने, तो ये ऑटोमेटिकली एक प्लेट की तरह ही काम करने लगता है। तो जो K1 जितना पार्ट उसका कैपेसिटेंस C1 होगा, जो दूसरा पार्ट उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C2 होगा। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज या पैरेलल है। अच्छा, सीरीज और पैरेलल से पहले ना चलो ठीक है, सीरीज और पैरेलल पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट किया, पावर सप्लाई मान लो, ये इमेजिन किया कि यहाँ पावर सप्लाई, तो ये एंड पे क्या होगा? V पोटेंशियल होगा, इस एंड पे क्या होगा? 0 पोटेंशियल होगा। तो अब देखो ना, मैं ये वाले पार्ट के लिए देख रहा हूं, इस पार्ट में जो ये प्लेट है, ये एरिया है ना, तो ये एरिया कौन सा पोटेंशियल को? 0 पोटेंशियल को है, और उसका जो दूसरा एरिया K1 वाले पार्ट का दूसरा एरिया क्या? 0 पोटेंशियल पे। तो C2 के लिए देख रहा हूं, इसका जो ये एरिया है वो कौन सा पोटेंशियल पे? V पोटेंशियल पे होगा। जो ये एरिया कौन सा पोटेंशियल पे? 0 पोटेंशियल पे। तो दोनों K1 और K2 दोनों जो पार्ट का है, दोनों का पोटेंशियल क्या है? V2 0 के बीच में। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या है? V जो है वो क्या है? सेम है। तो अगर V सेम है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? ये हो गया पैरेलल। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो जो है देखो, अभी जो K1 का एरिया कितना है? टोटल एरिया तो A है, बट K1 के लिए एरिया कितना है? A/2 है। तो मैंने यहां पे इमेजिन किया कि इसका जो कैपेसिटेंस को हम लेंगे C1, तो एरिया का वैल्यू क्या होगा? एरिया होगा A/2। ठीक है, एरिया क्या होगा? A/2। ठीक है, इनटू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू K1 अपॉन क्या हो गया? स्मॉल d हो गया। अब इसको अरेंज करो तो ये क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन क्या हो गया? 2d हो गया। इट्स अ वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस 1। ठीक है, अब हम कैपेसिटेंस 2 को यूज करते हैं, तो C2 का वैल्यू क्या होगा? C2 के लिए भी वैल्यू होगा। C2 के लिए देख लो, तो जैसे अभी ना ये K1 के लिए मतलब C1 के लिए ये था, इतना एरिया था, A/2 था, ये K1 था, सेपरेशन स्मॉल d था। अभी सेकंड के लिए देखते हैं C2, मतलब ये K2 है, एरिया उसका क्या है? A/2 होगा, सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल d ओनली। तो एरिया कितना होगा? A/2 हो गया सेकंड पार्ट के लिए भी, एप्सिलॉन नॉट होगा, ये K2 हो गया, अपॉन क्या होगा? स्मॉल d। ठीक है, और फिर इनको अगर साथ में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन 2d। बट एज यू कैन सी C1 C2 आर टू कैपेसिटर्स, तो ये कैपेसिटर का लेफ्ट साइड पोटेंशियल V है, उस साइड पोटेंशियल 0 है, यहां पे भी लेफ्ट साइड 0 है, V है, राइट हैंड साइड 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमें रिजल्टेंट पोटेंशियल मिलेगा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिलेगा, वो क्या होगा? Cp इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट कैपेसिटर प्लस सेकंड कैपेसिटर। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? ये K1 अपॉन 2d प्लस क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन 2d। ठीक है, तो Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसमें हमने A को कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, 2d को कॉमन ले लिया, व्हाट इज इन द ब्रैकेट? K1 प्लस K2। तो ये हो गया कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है? मान लो कि ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन होता कि इंस्टेड ऑफ गिविंग A अगर इन्होंने L दिया होता, और इंस्टेड ऑफ गिविंग A/2 अगर इन्होंने L/2 दिया होता, तो क्या फर्क होता? तो अब देखो यहां पे ना, जैसे कि अगर ये L है, वैसे L/2 है, जैसे ये L/2 है, तो L/2 तो मतलब इतने पर्टिकुलर पार्ट का, तो उसके लिए क्या होगा? ये हो गया L/2 हो गया, और ये B हो गया, तो L इंटू B का वैल्यू क्या है? A है, तो अपॉन 2। ठीक है, सो अगर वैसा कंसिडर किया है तो हम इस क्वेश्चन को चेंज करके, अच्छा उस पर हम आते हैं कि चेंज करके कैसे हम वैल्यूज को ऑब्टेन करेंगे। बट आपको इतना समझ लेना है कि जब ना एरिया होगा ना, जैसे अगर लेंथ दिया है तो हमने यहाँ पे A की जगह क्या पुट करेंगे? L इंटू B पुट करेंगे।
wherever you are having a, that place you put L into B and accordingly you go ahead. हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे L की वैल्यू लेके भी सॉल्व करेंगे, पहले हम सेकंड वाला कर लेते हैं, ये पार्ट को रब कर देता हूं मैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, सेकंड क्वेश्चन का स्टार्ट फ्रॉम ये बोली, ये डायग्राम ए के लिए, ये डायग्राम बी के लिए। डायग्राम बी में अगर मैं देख रहा हूं तो क्या मुझे मिल रहा है, डायग्राम बी में पहले मैं देखता हूं कनेक्शन कैसा है, इस एंड पे वी पोटेंशियल, इस एंड पे क्या जीरो पोटेंशियल है, बराबर। तो अब ना यहां पे देखो ना, ये दोनों के लिए ये बीच में है, तो कैपेसिटर की वैल्यू इतने दूर तक है ना, जो पहला कैपेसिटर इतने दूर तक ही है, तो इस कैपेसिटर के एंड में तो जीरो नहीं है, क्योंकि उसका ये जो जीरो है किसके एंड पे है, C2 के। अब C2 के एंड पे जीरो है, बट ना ये पार्ट पे कुछ नहीं दिया है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, x होगा। अब पोटेंशियल क्या होगा, V2 x है, फिर x2 0 है, मतलब पहले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, दूसरे कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, ये पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। जब पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो जाएगा सीरीज। आप इस तरह से याद रखोगे, ठीक है। तो अब ये हो गया, यहां पे ये पावर चला है, यहां पावर चला है, या नहीं तो समझने के हिसाब से इसको मैं, इस वाले को मैं फिर से यहां पे डिफाइन करके बताता हूं, या डायग्रामेटिकली दोनों को मैं बता रहा हूं। तो इस पार्ट को अगर डिफाइन करते हो तो ये हो गया C1, जिसमें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो ये क्या होगा C2, और ये है पावर सप्लाई, ये V और ये 0। तो ये एक्चुअल में इस तरह से काम कर रहा है, मतलब ये C1 कैपेसिटर C2 कैपेसिटर आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। और यहां पे देखो तो कैसे हो गया, जो C1 का वैल्यू C1 हो गया, ये जो C2 का वैल्यू, ठीक है, और दोनों के लिए जो पोटेंशियल है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, वो सेम है, दैट इज V एंड दिस इज 0। इस तरह से आप समझ सकते हो कि सीरीज है या पैरेलल है। कभी कभी लोग ना इसमें ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज है या पैरेलल है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सीरीज है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब कंडीशन के हिसाब से जो C1 की वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस 1, कैपेसिटेंस 1 क्या होगा, एरिया सेम है, एरिया की वैल्यू A होगी, एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, K1 है, बट ना सेपरेशन बिटवीन प्लेट कितना होगा, जिसमें डायरेक्टली कांस्टेंट K1 है, तो टोटल D है, बट ना सिर्फ C1 वाले K1 वाले पार्ट के लिए क्या है, सेपरेशन D/2 है। अब इसको अरेंज करेंगे, D/2 विल गो अप, तो दिस 2 विल गो अप, तो 2a एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन क्या होगा, ये स्मॉल d हो गया। सिमिलरली मैं नाम करूंगा C2 के लिए एरिया A है, ये एप्सिलॉन नॉट है, डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू K2 है, बट सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या है, D/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन स्मॉल d। अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऐसे कि यहाँ पे V पोटेंशियल है, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, तो ये पहला कैपेसिटर ऐसे काम करेगा, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और इन बिटवीन भी कोई कॉमन पोटेंशियल है, तो मतलब ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब सीरीज का क्या रूल है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसके डायरेक्ट मेथड में मैंने बताया था कि फर्स्ट कैपेसिटेंस इंटू सेकंड कैपेसिटेंस अपॉन फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस सेकंड कैपेसिटेंस। अभी ये यूज नहीं करें हम लोग फिलहाल, क्योंकि थोड़ा नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये 1/CS हो गया, तो C1 का वैल्यू क्या है, C1 का वैल्यू है 2a एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन क्या है, स्मॉल d है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2a एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन क्या होगा, ये स्मॉल d हो गया, तो ये हो गया 1/CS। अब यहाँ पे आप क्या करो, रेसिप्रोकेट कर दो, तो d/2a एप्सिलॉन नॉट K1 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा d/2a एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ये K2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इस केस में, d/2a एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1/K1 प्लस 1/K2। अब क्या होगा 1/CS, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ब्रैकेट वाली वैल्यूज को, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा, एलसीएम हो गया ना, K1 इंटू K2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा K2 प्लस क्या हो गया K1, ठीक है। सो अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 2 मैं भूल गया, तो ये 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d हो गया, और ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे K1 इंटू K2 अपॉन, ये भी रेसिप्रोकेट होगा ना, तो अब K1 प्लस K2 करो या K2 प्लस K1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो K1 प्लस K2। तो ये क्या हो गया, ये है क्वेश्चन के हिसाब से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर कैपेसिटर 1। जरा क्वेश्चन बोला था ना, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, तो इस डायग्राम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो उसकी वैल्यू क्या है, Cp है। जो ये डायग्राम है इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसकी वैल्यू क्या होगी, Cs, यहां पे आ गया। अब जैसा मैंने क्वेश्चन में बताया था कि हो सकता है शायद ना आपको यहाँ पे ये पोटेंशियल वाले से तो आप सीरीज और पैरेलल फाइंड आउट करोगे, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है,
अब मान लो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ना एरिया की जगह पे इन्होंने लेंथ ले लिया। मान लो ये टोटल प्लेट का लेंथ L है और यहाँ पे क्या होगा L/2। अब कैसे सिंप्लीफाई करोगे? कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया कि जो हमने यहाँ पे इसको A लिया है, तो मतलब ना ये कैसे बना रहेगा A, बिकॉज ऑफ दिस एरिया ना। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ प्रॉपर रेक्टेंगल हम एक सिर्फ लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जो ब्रेड्थ की वैल्यू हम B इमेजिन करके ही चलते हैं उस केस में। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस पार्ट के लिए सिंप्लीफाई करो तो ये लेंथ होगा, तो एरिया के लिए क्या होगा, क्योंकि बिना एरिया के आप सॉल्व कर ही नहीं सकते ना। फॉर्मूला क्या, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। तो आपको एरिया ही लेना है। तो अगर इसका लेंथ, ये पार्ट पर्टिकुलर पार्ट का लेंथ L/2 है, तो एरिया के लिए क्या, ब्रेड्थ भी चाहिए हमको। अगर आप इमेजिन करो तो ब्रेड्थ भी होगा ना इसका, तो ब्रेड्थ B होगा। तो अब उसके हिसाब से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, L/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो प्रॉपर्ली अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, L इंटू B इंटू एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन 2D। वैसे सिमिलरली हम दूसरे वाले पार्ट के लिए आ जाएंगे। दूसरे पार्ट में भी लेंथ क्या, L/2 है, हमने इमेजिन करा मल्टीप्लाइड बाय B, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट L इंटू B। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कंडीशन वही होगा ना जो भी आपने वैल्यू रखा है। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, A की जगह पे L इंटू B होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, A की जगह पे L इंटू B होगा। सो और फाइनल आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, L इंटू B। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली आपको पता है एरिया का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो कॉन्सेप्ट वही है, बट क्या L के टर्म में दिया है तो हमें उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम है, यहाँ पे वापस से एरिया इसका A है, बट हाफ पोर्शन में क्या एयर है, रिमेनिंग हाफ में क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो रूल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, ये पूरे प्लेट पे पोटेंशियल V होगा, इस पूरे प्लेट पे पोटेंशियल 0 होगा। तो ये जो कैपेसिटेंस देगा ये C1 हो गया, जो दूसरा पार्ट देगा कैपेसिटेंस वो C2 हो गया। तो C1 के लेफ्ट में V है, राइट में 0 है, C2 के भी लेफ्ट में V है, राइट में 0 है, तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल हो गया। तो जो हमने पहले किया हुआ वैसा ही हो गया ना। इसका एरिया क्या होगा, A/2 हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, अपॉन क्या होगा, ये D हो गया। तो सिंप्लीफाई करके क्या मिला, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d, सॉरी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 स्मॉल d। अगर मैं सेकंड पार्ट के लिए कर रहा हूं तो क्या होगा, ये A/2 होगा एरिया, एप्सिलॉन नॉट होगा पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अपॉन क्या है स्मॉल d है। पूरे को सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है हमको, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन 2D मिल रहा है। बट ऐसे केस में भी ना क्या है, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड तो Cp इज इक्वल क्या होगा, C1 प्लस C2। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप देख लो ना, ये दोनों वैल्यूज में क्या कॉमन है, A एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, चलो ठीक है लिख के देता हूं, 2D है, और ये क्या दूसरा क्या है, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन 2D है। तो व्हाट विल बी कॉमन, A एप्सिलॉन अपॉन 2D विल बी कॉमन, ये होगा 1 प्लस K। ये हो गया रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर भी एयर और इसके अंदर भी एयर हो, तो C2 का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ K नहीं होगा। अगर K नहीं होगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2 और इस 2 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, सॉरी 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स, ब्रैकेट में एयर है, कैपेसिटर C1 एंड C2 है, कैपेसिटेंसेस C ईच। मतलब दो कैपेसिटर है, C1 और C2 है, और उनके बीच में एयर है, और दोनों का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है वो C है। तो हमारा अजम्पशन है कि जो C का वैल्यू होगा ना, मान लो एरिया A होगा, ये एप्सिलॉन होगा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट क्या होगा, D होगा। तो ये होगा ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, ये दोनों प्लेट है, जब डायरेक्टेड नहीं रहा होगा, एरिया A रहा होगा, सेपरेशन बिटवीन देम D रहा होगा, तो उस टाइम पे आपको ये कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलती थी। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अब इन दोनों के अंदर ना डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। The between their plates is now filled with dielectrics as shown in the figure. So दोनों के अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। If two capacitors still have equal capacitances, मतलब जो फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अभी भी अगर इक्वल है, तो जो C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू अभी भी क्या है, इक्वल है, डाइलेक्ट्रिक के पुट करने के बाद भी। तो क्या करना है क्वेश्चन में, obtain the relation between dielectric constants K, K1 and K2। तो K, K1, K2 का हमें रिलेशन निकालना है। तो अब मैं ना अंडरस्टैंड करना है, आई विल ट्राई फॉर द C1। तभी आप लिखोगे यहाँ पे फॉर कैपेसिटर C1। कैपेसिटर C1 के जब मैं कैपेसिटेंस निकाला तो वैल्यू C1 है, एरिया क्या है उसका, एरिया A है, ये एप्सिलॉन होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K है, वर्सेस सेपरेशन बिटवीन प्लेट दैट्स अ स्मॉल d,
इसको ले लो आप क्वेश्चन नंबर 3। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर कैपेसिटर 2। सो फॉर कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 2 में दो पार्ट है ना, ये कैपेसिटर 2 है, तो मैंने क्या लिया कैपेसिटर 2 के फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग द कैपेसिटर 2 का फर्स्ट पार्ट। कैपेसिटर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये K1 है, डायरेक्टली कांस्टेंट K1 है। व्हाट्स द एरिया, एरिया लिखा नहीं मैंने, यहां पे एरिया का वैल्यू दिया इन्होंने L/2 दिया है। सॉरी एक छोटा सा यहां पे मिस्टेक हो गया, डायग्राम के हिसाब से ना यहां पे A नहीं है, यहां पे L है, ठीक है। तो अगर ये L होगा तो यहां पे क्या होगा, L इंटू बी लेना पड़ेगा आपको ना, क्योंकि लेंथ है तो आपको इमेजिन करना कि इसका ब्रेथ भी होगा, यहां पे भी करेक्शन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा L इंटू बी एप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल डी। तो C2K का वैल्यू क्या होगा, यहां पे जो लेंथ की वैल्यू क्या है, एरिया नहीं है, तो अपना लेंथ इंटू ब्रेथ लेना पड़ेगा। तो लेंथ हो गया L इंटू बी, L/2 इंटू बी। सो लेंथ की वैल्यू तो L/2 है और ये टोटल लेंथ L होगा, डायग्राम में करेक्शन कर लेना। और उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट है और यहां पे क्या है K1 है अपॉन क्या होगा स्मॉल d होगा, ठीक है, क्योंकि सेपरेशन सेम है। तो अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, L इंटू बी ब्रैकेट में दिस एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन क्या होगा 2 स्मॉल d हो गया। इसको लेना आप इक्वेशन नंबर 4 ले लो। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस 2 के लिए सेकेंड पार्ट जिसमें डायरेक्टली K2 है, तो उसका भी लेंथ क्या होगा, अगर L/2 यहां यूज होगा तो यहां पे होगा L/2, तो L/2 इंटू क्या होगा, ये b हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली कांस्टेंट का वैल्यू K2 हो गया, ठीक है। और सेपरेशन बिटवीन प्लेट का होगा स्मॉल d, इसको अरेंज करोगे तो L इंटू बी, यहां पे न्यूमरेटर एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन क्या होगा ये 2 स्मॉल d होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो अब जो लेफ्ट हैंड पे है जीरो पोटेंशियल है, वी पोटेंशियल है, पूरे प्लेट पे वही पोटेंशियल होगा, लेफ्ट हैंड पे आप जीरो पोटेंशियल इमेजिन कर रहे हो, तो मतलब दोनों के लिए पोटेंशियल C1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और C2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल हो गया। तो जो C2 है ना वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C21 एंड C22, ठीक है। अब वैल्यूज रख लेते हैं हम, वैल्यूज रखोगे तो C21 की वैल्यू क्या है, L इंटू बी, ये है एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन 2d हो गया, प्लस C22 का वैल्यू रखेंगे हम, सो वो क्या होगा L इंटू बी एप्सिलॉन नॉट ये K2 अपॉन क्या होगा ये 2 स्मॉल d, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे क्या होगा, सो फाइनली C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C2 का वैल्यू में ये कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा, L इंटू बी विल बी कॉमन, एप्सिलॉन नॉट विल बी कॉमन, 2d विल बी कॉमन, एंड व्हाट इज इन द ब्रैकेट, इट्स K1 प्लस K2। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। सो अब ना क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, C1 एंड C2 इक्वल है, तो C1 का वैल्यू इक्वेशन 3 से, C2 का वैल्यू इक्वेशन 6 से। सो पुट इक्वेशन 3 एंड 6 कहां पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2। C1 का वैल्यू क्या है, C1 का वैल्यू है L इंटू बी, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट K अपॉन क्या होगा स्मॉल d, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहां पे L इंटू बी एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2 अपॉन क्या होगा 2 स्मॉल d हो गया। तो अब क्या होगा, L इंटू बी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, d भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2। ये हो गया हमारा डायरेक्टली कांस्टेंट का रिलेशन K1 K2 का। अब एक और क्वेश्चन का मैं जैसे ऐसे उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट समझाने के हिसाब से, कि मान लो ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट्स है, ठीक है, और इसमें ये इस तरह से डायलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक का वैल्यू वो K1 है, यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू K2 है, यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक है उसका वैल्यू K3 है, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम है। तो अब रूल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे V पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल होगा, बराबर। अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, और उसके बाद ना यहाँ पे ये पूरे प्लेट पे V होगा, इस पूरे प्लेट पे क्या होगा ये पता नहीं हमें, ये पूरे प्लेट पे 0 होगा। तो अब इन दोनों के अलावा भी ना ये प्लेट दिख रहा है जो इसके लिए कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, x ले लिया। तो अब आप क्या करते हो, यहाँ पे V पॉइंट ले लिया आपने, यहाँ पे x पॉइंट ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया। तो अब कैपेसिटर्स को अरेंज करते हो, कैसे अरेंज करते हो, तो जो पहला कैपेसिटर है ना C1 किसके बीच में, C1 इज बिटवीन 0 है V एंड x पोटेंशियल के बीच में, तो V एंड x पोटेंशियल के बीच में क्या है C1 है। फिर क्या है, जो C2 होगा किसके बीच में आएगा, वो भी V और x के बीच में, तो C2 भी क्या है V और x के बीच में, बट दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम है, ये दोनों क्या हो गए पैरेलल हो गए, बराबर। तो अब इस साइड में V बना और इस साइड में x बना, आप ऐसे इमेजिन कर लो, बराबर ना, तो दोनों के लिए वही कंडीशन। और जो ये वाला है कैपेसिटर C3 उसके लिए K3 की वजह से, तो x और 0 के बीच में, तो x और 0 के बीच में ये आ जाएगा, ये हो गया C3, मतलब ये दोनों कैसे हैं पैरेलल है और ये क्या है सीरीज में।
मतलब इसका जो वैल्यू मिलेगा, इसका जो वैल्यू मिलेगा, उसको पैरेलल में सॉल्व करो, फिर ओवरऑल इसके साथ में किससे सॉल्व करो, सीरीज में सॉल्व करो. बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो आपको क्या कंडीशन लेना, हमने 3 कंडीशन लिया हुआ है. जो पहला कंडीशन है ऐसा है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हमने पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है, तो सर्टेन पैरामीटर्स है. तो अभी हम फिलहाल तो 3 पैरामीटर में फोकस करेंगे, बाकी पैरामीटर्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. तो जो पहला कंडीशन क्या है कि अगर मान लो एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की वैल्यू C है फॉर एग्जांपल, और इसको आपने पावर सप्लाई V से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है. तो क्या क्या क्राइटेरिया हमें पता चल सकता है. तो मान लो कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको हमने क्या ले लिया है, C ले लिया है. ये C इज द कैपेसिटेंस और ये उसकी वैल्यू हो गई, उस तरीके से आप सोचो, ठीक है. और V क्या होगा, V इज द पावर सप्लाई विच वी आर गिविंग टू द सर्किट, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, V हो गई. अब ना जो Q होता है वो क्या है, चार्ज है. तो चार्ज की वैल्यू इसकी क्या होगी, चार्ज की वैल्यू क्या होगा ना, आप Q ही ले लो, जो कैसे ऑब्टेन होगा, Q का वैल्यू था C इंटू V. तो ये जो कैपेसिटेंस है उसको मल्टीप्लाई करके और पोटेंशियल V को मल्टीप्लाई करके हमें ये वैल्यू मिलता है. तो स्टार्टिंग में वी आर अज्यूमिंग कि आइडियल कंडीशन इज वेरी सिंपल, कि जो C का वैल्यू है, कैपेसिटेंस की वैल्यू C है, पोटेंशियल जो अप्लाई किया वो V है, और जो चार्ज स्टोर हुआ है इसके अंदर वो उसकी वैल्यू क्या है, Q है. दैट्स अ आइडियल कंडीशन की कैपेसिटर को हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है एंड कैपेसिटर इज कंटेनिंग एयर, इसमें एयर है, तब ये कंडीशन है. अब क्या होता है कि ये बोल रहे हैं ना कि आप सेम कंडीशन को ही फॉलो करो, बट थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें. वेरिएशन क्या है इसमें कि ये सेम कंडीशन होगा. अभी ये जो पावर सप्लाई है ना, अभी भी कैपेसिटर को कनेक्टेड है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, बट क्या होता है कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया, तो व्हाट विल रिमेन्स एंड व्हाट विल चेंज, ठीक है. तो ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी ये C डैश होगा, ठीक है. सो अब C डैश का वैल्यू क्या होगा, तो अभी आप अगर इमेजिन करो ना, यहां पे ये C का वैल्यू कैसे मिला होगा, यहां पे C का वैल्यू क्या होगा, ये एरिया A था, एप्सिलॉन नॉट था, उसके बीच का सेपरेशन D था. अब बाकी सारा पैरामीटर तो वैसा ही है. तो अगर मैं C डैश की बात करता हूं तो C डैश में क्या होता है, C डैश में A होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, K होगा, अपॉन क्या होगा, ये D होगा. ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा. तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, C इंटू K. सो अगर आप ओरिजिनल कैपेसिटेंस में K से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ओरिजिनल कैपेसिटेंस में फिर मल्टीप्लाई बाय K, तो आपको नया कैपेसिटेंस मिल जाएगा. इस केस में भले वो बैटरी से कनेक्टेड है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब हम आ जाते हैं पावर सप्लाई पे. तो हमारा अजम्पशन है कि जो पावर सप्लाई का वैल्यू होगा ना, ये क्या होगा, V हो गया, यहां पे वैल्यू हो गया ये V डैश हो गया, जो पावर सप्लाई की वैल्यू है V डैश. तो जो V डैश का वैल्यू क्या होगा, V डैश विल नॉट चेंज अंटिल अनलेस यू विल नॉट चेंज द पावर सप्लाई. सो अभी हमारे हिसाब से नया हमने सप्लाई दिया, बट नया सप्लाई तो तब होगा ना जब हम नया पावर सप्लाई, नया वैल्यू अरेंज करेंगे. वैल्यूज तो वही है, तो जो V डैश है ना, जो पहले वैल्यू था उसी के इक्वल होगा. तो V डैश इज इक्वल टू V ओनली, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है. जब तक आप सेम पावर सप्लाई कनेक्ट करके रखते हो तब तक V में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जो नया V डैश होगा वो वही रहेगा. तो अब अगर मान लो कि चार्ज के बारे में पूछा है, तो जो Q डैश की वैल्यू होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा. तो Q डैश ना वापस से Q इज इक्वल टू C. तो यहाँ पे Q डैश के हिसाब से हम जाएंगे तो क्या होगा, C डैश होना चाहिए, V डैश होना चाहिए. C डैश की वैल्यू क्या है, C डैश की वैल्यू C K है, और V डैश की वैल्यू क्या है, V है. तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो पहले जो चार्ज था वो Q था, तो मतलब क्या हो गया, सिर्फ K को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज वो पहले वाला ही है. तो जो नया चार्ज होगा वो नया चार्ज क्या होगा, जो पहले चार्ज था उसको K से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नया चार्ज मिल जाएगा. तो कभी अगर आपको ना डायरेक्टली अगर ये कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि बैटरी को आपने ना क्या क्या कैपेसिटर से कनेक्ट करके रखा हुआ है, बट कैपेसिटर के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जो चार्ज की वैल्यू को वो भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, बट उसका पावर सप्लाई का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा. पोटेंशियल अप्लाई टू द सर्किट विल रिमेन सेम, क्योंकि अभी भी वो सेम पावर सप्लाई को कनेक्टेड है. ये चीज समझना बहुत जरूरी है. तो क्या होता है कि आप ये करके फिर ऐसे फाइंड आउट करके भी बता सकते हो, बट या डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डायरेक्ट मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा तो भी डायरेक्ट मेथड आपको यूज करना पड़ सकता है. अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट पे. लास्ट वाले पार्ट में क्या हो गया कि ये बोल रहे कि अब पावर सप्लाई को आपने रिमूव कर दिया. पावर सप्लाई रिमूव करने का मतलब ये नहीं होता कि अब इसके अंदर कोई पावर सप्लाई नहीं रहेगा. लाइक ना अभी मोबाइल का बैटरी आप इमेजिन करो, तो मोबाइल की बैटरी स्टार्टिंग में 0% है. अब आपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज किया, 30-40% चार्ज कर लिया, तो उसको चार्ज करने के बाद अब उसके अंदर पोटेंशियल तो जनरेट हो गया ना.
अब वो पोटेंशियल जनरेट होगा तो उस पोटेंशियल का इफेक्ट, एक्चुअली वो एग्जांपल सुटेबल नहीं होगा यहाँ पे, जस्ट मैं रिलेट करने के हिसाब से बता रहा हूं। तो कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया, कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो अब जो पहले पावर सप्लाई आपने दिया था ना, वही पोटेंशियल उस कैपेसिटर में कंटिन्यू हो जाएगा अनटिल अनलेस आप उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं लाते हो। लाइक कैपेसिटर में कोई वेरिएशन, जैसे अभी इसको 100 वोल्ट दिया मैंने इस कैपेसिटर को, अब इस कैपेसिटर को मैं डिस्कनेक्ट करके कहीं पर भी लेके जाऊं, उसके अंदर कितना पोटेंशियल रहेगा, 100 वोल्ट ही रहेगा, जब तक कि मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं करता। तो देख लेते हैं। सो अभी क्या हो गया, क्राइटेरिया तो वही हो गया ना। अभी डिस्कनेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, कैपेसिटर के अंदर ये पुट कर दिया, तो कैपेसिटर में एरिया उसका वही रहेगा, ए रहेगा, एप्सिलॉन होगा, डी होगा, डायरेक्ट पुट कर दिया के, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, सी डैश का वैल्यू होगा सी के, तो ये मल्टीप्लाई वाला ही टर्म। अब हम पोटेंशियल पे देख लेते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। जो नया पोटेंशियल होगा ना वो क्या होगा, देखो पहले तो 100 था, तो वो तब तक 100 रहता जब तक कि आप उसके अंदर डायरेक्ट पुट नहीं करते। डिस्कनेक्ट कर दिया, अगर कनेक्टेड रहता तो डायरेक्ट पुट करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। कनेक्टेड अगर रहता पावर सप्लाई से, आप डायरेक्टली पुट करो नहीं करो, पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती, सेम रहती। अब आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करने का मतलब जो पहले पावर सप्लाई रहेगा वही अंदर होगा, तब तक अंदर वही वैल्यू होगा जब तक आप ना कोई वेरिएशन नहीं लाते हो कैपेसिटेंस में। आपने यहाँ कैपेसिटेंस में वेरिएशन क्रिएट कर दिया बाय पुटिंग डाइलेक्ट्रिक, तो अब कैपेसिटेंस चेंज हो गया है, तो अब पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वहां पे चेंज हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक की वजह से कितना फर्क पड़ेगा उस पर हम देखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो भी पोटेंशियल आपको पहले मिला था उसको के से डिवाइड कर दो तो आपको नया पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ना नए पार्ट में डिस्कस करते हैं तो क्यू डैश पे क्या फर्क पड़ता है, तो जो क्यू डैश है, क्यू डैश की वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब ऐसा होगा कि कैपेसिटेंस में मैंने ना फॉर एग्जांपल 100 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो 100 कूलम चार्ज इतना का ऑब्जेक्ट आप समझ लोगे। जैसे अभी किसी घर के अंदर आपने क्या किया है, 10 बुक्स रखी हुई है, आप घर के डायमेंशन में कोई भी वेरिएशन करो वो 10 बुक्स तो उसके अंदर ही रहेगा, कुछ उस तरह का कंडीशन। तो कैपेसिटर हमने 10 कूलम चार्ज स्टोर करके रखा, अब कैपेसिटर में कैपेसिटेंस बढ़ा दूं कम करूं चाहे जो भी करूं, वो कूलम चार्ज है वो उतना ही रहेगा। वो चार्ज कैपेसिटेंस के हिसाब से क्या करेगा, पोटेंशियल को कंट्रोल करेगा, वैसा बोल सकते हो। तो अब क्या हो गया कि जो चार्ज की वैल्यू वही रहेगी। तो देख लेते हैं होता है नहीं होता ऐसा। तो क्यू डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए रूल के हिसाब से, सी डैश होना चाहिए, वी डैश होना चाहिए। तो सी डैश का वैल्यू क्या होगा, सी के है, और वी डैश का वैल्यू क्या है, वी के है। तो के कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो नया चार्ज मिलेगा वो क्या होगा, सी वी बचा ना, तो सी वी क्या होगा, क्यू। मतलब जो चार्ज आपको यहां पर स्टोर हुआ था, अब पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट को इंसर्ट कर दिया, फिर भी चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं एक बार इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं, व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपने पावर सप्लाई को कनेक्शन में रखा हुआ है तो आप कोई भी वेरिएशन करो, वी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली पुट करते हो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है के टाइम्स, पोटेंशियल वही रहेगा अगर बैटरी कनेक्टेड है, और चार्ज स्टोर में कितना चेंज होगा, चार्ज स्टोर भी के टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा जब बैटरी कनेक्टेड है और आपने डायरेक्टली पुट किया तब का कंडीशन। दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में क्या होगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड, आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करना नहीं चेंज होगी, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मान लो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा जब तक कि आप कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं करते हो। तो अगर मान लो मैंने कैपेसिटेंस चेंज कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा, के टाइम इंक्रीज होगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल के टाइम डिक्रीज होगा, और चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बैटरी जब कनेक्टेड है तो वी का वैल्यू सेम रहेगा, जब बैटरी को आप डिस्कनेक्ट कर दोगे तब क्यू का वैल्यू सेम रहेगा। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। अगला क्वेश्चन जो है इस टेबल के फॉर्मेट पे ही हमें कंसिडर करना, मतलब इसको हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो ये जो टेबल वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको ना जब डायरेक्ट लिखना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होगा या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह टाइप में होगा, तो या 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बट अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो हम थोड़ा डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं उस मेथड से थोड़ा लेंदी होगा, बट आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, वो आप समझ लेना। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, फिगर शोज 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और यहां पे देख लो, 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 आइडेंटिकल है। ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक है ना यहाँ पे, आइडेंटिकल एंड ईच ऑफ 1 माइक्रोफैराड है, दोनों की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है, इसका वैल्यू भी 1 माइक्रोफैराड है, इसका वैल्यू भी 1 माइक्रोफैराड है। फिर क्या बोला, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, और ये दोनों एक बैटरी को 6 वोल्ट से कनेक्टेड, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड,
स्टार्टिंग में जो स्विच एस होगा ये क्लोज होगा, जैसे ये क्लोज होगा ना तो ये दोनों कैसे हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे एंड इसके पास भी ये, तो ये जो 6 वोल्ट है वो C1 को भी मिलेगा, ये 6 वोल्ट है वो C2 को भी मिलेगा अगर पैरेलल कनेक्टेड। और तो कैसा सिचुएशन होगा, बैटरी कनेक्टेड टू कैपेसिटर, कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये वाले कंडीशन में आ जाएगा ये। फिर क्या बोल रहे हैं, आफ्टर सम टाइम्स मतलब ये चार्ज हो गया रहेगा, मतलब इसके अंदर चार्ज स्टोर हो गया रहेगा, ये जो पोटेंशियल है इसके पास भी आ जाएगा, ये पोटेंशियल इसके पास भी आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम एस इज लेफ्ट ओपन, एस को उन्होंने क्या करना, ओपन कर दिया। अब एस को ओपन कर देंगे तो जो C2 कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, C2 फॉलो करेगा बैटरी डिसकनेक्टेड, ठीक है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 3 आर इंसर्टेड। उसके बाद इनके अंदर K इज इक्वल टू 3 डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं, जिसका वैल्यू K इज इक्वल टू 3 है, मतलब इसके अंदर भी पुट करेंगे, इसके अंदर भी पुट करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, to fill completely the space between the plates of two capacitors, how will charge and potential difference between the plates of capacitor be affected after the slabs are inserted। तो अब एक चीज है ना कि पहले वाले पार्ट में जब ये क्लोज था तो ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, ये भी पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, और ये क्या होगा, ये कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो पहले वाले कंडीशन को दोनों फॉलो करते हैं। बट जब ना इसको ओपन करके दोनों में डायरेक्टली पुट कर दिया तो ये कौन सा वाले कंडीशन को फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा लास्ट वाले कंडीशन को, बैटरी डिसकनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इंसर्टेड, ठीक है। और ये किसको फॉलो करेगा, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इंसर्टेड। तो मैं डायरेक्ट मेथड वाला भी आंसर डिस्कस करूंगा ये, लेकिन पहले मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो पहले मैं क्या अज्यूम करता हूं कि स्विच एस इज क्लोज्ड, है ना, तो पहले आप लेते हो व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, जब स्विच एस क्लोज है तब क्या क्राइटेरिया होगा। हमारे पास ना दो कैपेसिटर है, तो मैं ले रहा हूं फॉर C1, कैपेसिटर C1 के लिए, कैपेसिटर C1 के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी C1 का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफैराड है कैपेसिटेंस का, कोई इशू नहीं। अब C1 को कितना पावर सप्लाई एप्लीकेबल है, तो ये 1 के लिए डिस्कस करो, उसके लिए मैं V1 ले लूंगा। तो C1 को कितना पावर सप्लाई मिल रहा है, 6 वोल्ट का मिल रहा है, तो क्या मैं इसका चार्ज निकाल सकता हूं कि कितना चार्ज स्टोर हुआ रहेगा, आई विल गेट Q1 का फॉर्मूला रूल के हिसाब से क्या होगा, C1 इंटू V1, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 6, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 की वैल्यू होगी 6 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम क्यों, क्योंकि ना कैपेसिटर माइक्रोफैराड में, तो माइक्रो में है कैपेसिटर, तो आपको ये भी माइक्रो में मिलेगा जो चार्ज है। ये किसके लिए, C1 के लिए होगा। अब हम ले रहे हैं फॉर C2, कब, जब अभी भी वो क्लोज है, तो जो C2 का वैल्यू है वो कितना है, C2 का वैल्यू भी है 1 माइक्रोफैराड है। एक्चुअल में सारे क्राइटेरिया सेम है तो वो सेम ही आना चाहिए। V2 का वैल्यू क्या है, V2 अभी भी है कनेक्टेड है पावर सप्लाई को, तो ये क्या V2 का वैल्यू क्या होगा 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अब जो Q2 का वैल्यू क्या होगा, Q2 जो होगा इनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज द C2 इंटू V2 विच इज नथिंग बट 1 इंटू 6, दैट इज व्हाट 6 माइक्रोकूलम। बात समझ में आई। ये कब होगा, जब ना स्विच एस को क्लोज किया है तब का क्राइटेरिया। अब हमने क्या कर दिया, स्विच को ओपन कर दिया, ठीक है। फिर आप मेंशन करो व्हेन स्विच एस इज ओपन, व्हेन स्विच एस इज ओपन कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक K इक्वल टू 3 इंसर्टेड, फाइन। अब हम ना वापस से हर कैपेसिटर के लिए डिस्कस करेंगे। तो जो कैपेसिटर 1 का वैल्यू होगा, मतलब फॉर कैपेसिटर 1, तो अब डायरेक्ट इंसर्ट कर दोगे तो कैपेसिटर 1 C1 तो नहीं मिलेगा, तो C1 डैश मिलेगा ना। देखो C1 डैश की वैल्यू होगा C इंटू K, मतलब जो पहले कैपेसिटर रहा होगा उसको K से मल्टीप्लाई कर दो, जो पहले कैपेसिटर है उसको K से मल्टीप्लाई कर दो, C1 K। पहले कैपेसिटर कितना था, 1 माइक्रोफैराड था, अब डायरेक्ट की वैल्यू 3 हो गई, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो नया कैपेसिटर का वैल्यू मिलेगा C1 के लिए। अब ना पावर सप्लाई देखते हैं V1, तो V1 डैश की वैल्यू क्या होगी। तो अब सोचने वाली बात इसमें है कि V1 ये जो C1 कैपेसिटर है ये डिस्कनेक्ट करने के बाद, इसको ओपन करने के बाद भी ये अभी भी पावर सप्लाई को कनेक्टेड है, मतलब ये वाला कंडीशन, तो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। तो पावर सप्लाई का वैल्यू क्या होगा, तो पहले वाला कंडीशन उसके सिमिलर ही रहेगा, मतलब V1 के, तो V1 डैश का वैल्यू जो मैं लिखने के साथ V1 डैश का वैल्यू जो पहले V1 था उसी के इक्वल होगा, जिसका वैल्यू क्या है 6 वोल्ट। तो अगर आपको चार्ज फाइंड आउट करना, फॉर एग्जांपल चार्ज का क्या क्राइटेरिया है इस केस में, कि मतलब अभी भी ये क्या है, बैटरी को कनेक्टेड है और उसके बाद सेम पावर सप्लाई है और डायरेक्टली पुट कर दिया, तो जो नया चार्ज होगा वो क्या होगा, K टाइम्स होगा पुराने चार्ज का। तो पुराना चार्ज कितना था
ये 6 था, डायरेक्टली कितना है 3, तो 6 3 कितना हो गया 18 कूलम। वो तो डायरेक्ट मेथड हो गया, बट यहां पे हमें मैथमेटिकली अगर करना होगा तो कैसा होगा, हम लिखेंगे Q1 डैश, तो जो नया चार्ज होगा तो किसके ऊपर डिपेंड होगा, ये C1 डैश इंटू V1 डैश पे डिपेंड करेगा। ठीक है, C1 डैश की वैल्यू कितनी हो गई 3 और V1 डैश की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो अभी जो नया चार्ज है वो कितना हो गया 18 माइक्रो कूलम का, जो नया पोटेंशियल है वो कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटर 2 के लिए। तो फॉर कैपेसिटर 2 में अगर आप आ जाते हो तो C2 डैश का वैल्यू क्या होगा, तो कैपेसिटर 2 इज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया ना स्विच को ओपन करके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नया कैपेसिटेंस होगा क्या होगा, नया कैपेसिटेंस ओल्ड कैपेसिटेंस टू के, ओल्ड कैपेसिटेंस C2 है डायरेक्टली कांस्टेंट के, तो ओल्ड कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है 1 माइक्रो फैराड है और के का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइक्रो फैराड है। ओके, अब ना जो दूसरा पॉइंट हमने लर्न किया है कि जो एक जब हमने कनेक्ट किया था तब ये चार्ज हुआ तो इसका कुछ पोटेंशियल रहा होगा। मैं इसको दो मेथड से सॉल्व करता हूं, इसका तो कुछ पोटेंशियल होगा, तो वो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी ना डायरेक्ट इनपुट करने के बाद क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो जो V2 डैश का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो पहले पोटेंशियल था वो डायरेक्ट वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले पोटेंशियल क्या था V2 था, तो अब डायरेक्ट वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू क्या है 6 है, डायरेक्ट की वैल्यू 3 है, कैंसिलेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है Q डैश की वैल्यू निकालनी है, तो Q2 डैश क्या होगा, चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा, तो मतलब जो पहले चार्ज था दैट इज व्हाट 6 माइक्रो कूलम ना Q2 का वैल्यू, बट हम सॉल्व करके देखते हैं। तो Q2 डैश का वैल्यू क्या होगा, Q2 डैश का वैल्यू होगा C2 डैश एंड V2 डैश, तो C2 डैश का वैल्यू कितना है 3 है, V2 डैश का वैल्यू क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा 6 माइक्रो कूलम। तो मैथमेटिकली सॉल्व करते हो ऐसे, ये वाले पार्ट को मैं ना फिर से सॉल्व कर एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेता हूं, जो C2 डैश का पार्ट है। C2 डैश में क्या होगा और मेथड, तो C2 डैश का वैल्यू क्या होगा, C2 डैश का वैल्यू होगा C2 इंटू के दैट इज 3 माइक्रो फैराड। लेकिन अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हो तो आपको एक चीज ध्यान देना, जैसे मैंने यहां पे बताया था कि जब बैटरी कनेक्टेड है तो V की वैल्यू सेम ले लेना, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड तो Q की वैल्यू सेम ले लेना। तो यहां पे क्या लिखोगा Q2 डैश, तो Q2 डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी Q2 के इक्वल होगी, तो Q2 का वैल्यू कितना था पहले, Q2 का वैल्यू था 6 माइक्रो कूलम बराबर। तो अब V2 डैश की वैल्यू क्या होगी, V2 डैश विल बी Q2 डैश अपॉन C2 डैश, तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन ये हो जाएगा 3, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू 3 है, तो कैंसिल होगा कितना होगा 2 वोल्ट। तो देख लो आपको दोनों मेथड से सेम मिलेगा, कैपेसिटर 3 माइक्रो फैराड है, जो चार्ज की वैल्यू है 6 माइक्रो कूलम, पोटेंशियल वैल्यू है 2 वोल्ट। आपको जो मेथड सुटेबल लगे वो मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अब हम एक बार डायरेक्ट मेथड से देख लेते हैं कि मान लो अगर मुझे ना इसका इन्होंने पूछा है पोटेंशियल की वैल्यू, तो अभी भी पावर सप्लाई को कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली पुट करने के बाद भी इसका पोटेंशियल मतलब V1 डैश की वैल्यू क्या होगी 6 वोल्ट होगा, तो मैंने वो डायरेक्ट लिख लिया। और इसके अंदर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो जो Q1 डैश का वैल्यू क्या होगा Q1 इंटू के है ना कनेक्टेड वाले में, इसके लिए तो Q1 डैश इंटू के, Q1 इंटू के, तो Q1 का वैल्यू 6 है, के का वैल्यू 3 है, तो 18 कूलम डायरेक्टली वाले में। अब इसमें अगर आप आते हो तो इसमें क्या हो गया, जो पोटेंशियल का वैल्यू पहले था उसको के से डिवाइड कर देना, तो पोटेंशियल वैल्यू पहले कितना था 6 था, के से डिवाइड करोगे तो कितना 3 से डिवाइड करोगे मतलब 2 हो गया। और अगर मुझे चार्ज निकालना तो जो पहले चार्ज रहा होगा वही चार्ज में कंटिन्यू हो जाएगा, तो पहले चार्ज कितना था C2 का वैल्यू था 6 माइक्रो कूलम, वही चार्ज कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो तो ये मेथड यूज कर सकते हो। एक और बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कभी कभी क्या होता है रेशियो पूछता है ऐसे क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कंडीशन, तो फर्क कोई नहीं पड़ता है। तो जो इनिशियल यहां पे लेना आपको इनिशियल एनर्जी के लिए क्या लिखोगे आप, हाफ लिखोगे C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, मतलब इनिशियली तो दोनों कैपेसिटर होगा ना, C1 भी होगा C2 भी होगा, दोनों कनेक्टेड है। तो अब वैल्यूज का लेना, C1 का वैल्यू हमको पता है, V1 का वैल्यू हमको पता है, C2 का वैल्यू हमको पता है, V2 का वैल्यू हमको पता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना उस वैल्यू को, करेक्ट। अब अगर फाइनल के लिए होगा तो क्या होगा U फाइनल, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हमारा सोल्यूशन यहां पे खत्म होगा, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो फाइनल के लिए क्या होगा, फाइनल के लिए हाफ हो गया, कैपेसिटर का जो C1 डैश हो गया, जो पोटेंशियल हो गया वो V1 डैश हो गया उसका स्क्वायर, प्लस एक होगा हाफ हो गया C2 डैश हो गया, और एक होगा V2 डैश का स्क्वायर। तो अब क्या है, C1 डैश की वैल्यू भी हमको पता है, V1 डैश की वैल्यू भी पता है,
C2 डैश की वैल्यू भी पता है, V2 डैश की वैल्यू भी पता है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो अगर एनर्जी का रेशियो पूछा है तो आप ये डायरेक्ट मेथड्स को यूज कर सकते हो। हाँ, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दीस पार्ट्स। तो अब क्या होता है, इसमें ना मैं 2-3 पॉइंट्स और ऐड करना चाहता हूँ, 2-3 पॉइंट्स में तो 2 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। वो 2 पॉइंट ऐड करने के लिए ना क्या है, देखो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, बट उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, V/d के इक्वल है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या, एनर्जी। मान लो एनर्जी की वैल्यू U है, बट वो क्या होता है, हाफ CV² होता है ना। अब वो 2 पॉइंट्स को मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं, तो ये मैं यहाँ पे इनको रब करके जो फाइनल कंडीशन उसको लिखता हूं। तो फाइनल कंडीशन में क्या मिल रहा है मुझे, यहां पे क्या होगा, जब बैटरी कनेक्टेड है तो पावर सप्लाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा, और जो नया चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पुराना चार्ज था इनटू K, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा E डैश। अगर आप लेते हो तो E डैश का वैल्यू क्या होगा, E डैश के हिसाब से ना ये जो होगा, जैसे E का वैल्यू होता V/d, तो वैसे ही क्या होगा V डैश। सेपरेशन तो चेंज नहीं होगा ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पोटेंशियल चेंज हुआ रहेगा, बट हम देख रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो क्या होगा V/d। मतलब जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। तो जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा, रिमेन कनेक्टेड, तब 2 चीजें कांस्टेंट रहेंगी, एक तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। अब एनर्जी को भी देख लेते हैं। एनर्जी की वैल्यू हो गया U डैश, ले लो आप। तो U डैश में क्या हो गया, ये हाफ हो गया, ये हो जाएगा C डैश एंड V डैश का स्क्वायर, तो ये हाफ हो गया। C डैश की वैल्यू क्या हो गई, CK हो गया, और V डैश का वैल्यू क्या हो गया, V डैश का वैल्यू जो पहले था V²। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हाफ CV², तो हाफ CV² है, उसकी वैल्यू क्या U है, तो जो U डैश की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, U इंटू K, ठीक है। जो पहले एनर्जी उसको K से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नई एनर्जी मिल जाएगी। अब इस वाले पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो जो क्या है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया होगा, नया पोटेंशियल ये मिलेगा आपको। तो जो नया पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, बैटरी को जब डिस्कनेक्ट कर देते हो तो पहले पोटेंशियल उसको K से डिवाइड कर देना, ठीक है। और जो चार्ज की वैल्यू क्या होगा, चार्ज का वैल्यू जो पहले चार्ज था वही रह जाएगा जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या होता है, V'/d होगा। तो देख लेते हैं, V डैश का वैल्यू क्या है, V/K होगा इंटू D। तो V/d का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, K टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप एनर्जी लेते हो तो क्या होगा, U डैश का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा C डैश एंड V डैश का स्क्वायर, तो ये हाफ हो गया। C डैश का वैल्यू क्या है, CK होगा। V डैश का वैल्यू क्या है, V डैश का वैल्यू तो VK है, तो मतलब V का स्क्वायर और K का स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे ये K इस K से कैंसिल होगा, एंड व्हाट इज लेफ्ट। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जर्व करके हमें क्या मिलेगा, ये हाफ मिला, ये C मिला, ये V² मिला। ये किसकी एनर्जी है, ओरिजिनल एनर्जी हो गया, अपॉन क्या होगा, ये K हो गया। तो अब ना एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि मान लो अगर पहले तो एक है बैटरी रिमेन कनेक्टेड में, तो पहले कैपेसिटेंस C था और अब बैटरी रिमेन कनेक्टेड बट डायरेक्टली आपने पुट कर दिया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल का वैल्यू पहले V था, अगर अभी भी बैटरी कनेक्टेड है, डायरेक्टली पुट करने के बाद भी पोटेंशियल वही रहेगा। पहले चार्ज Q था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अभी भी बैटरी कनेक्टेड है और जो नया चार्ज का वैल्यू होगा वो K टाइम्स का होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा। और तो आपको इसमें क्या नोटिस करना है कि जब बैटरी कनेक्टेड और डायरेक्ट्रिक पुट किया है तो 3 क्वांटिटीज जो चेंज होती है, एक होता है कैपेसिटेंस, दूसरा होता है चार्ज और तीसरा होता है एनर्जी। और जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट। कब, जब बैटरी कनेक्टेड होगा और डायरेक्ट्रिक आपने पुट किया। तो बैटरी कनेक्टेड है, डायरेक्ट्रिक आपने पुट किया है, पोटेंशियल सेम रह जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह जाएगा। कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा K टाइम्स। चार्ज कितना चेंज होगा, इंक्रीज होगा K टाइम्स। और पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा, वो भी इंक्रीज होगा K टाइम्स। डायरेक्ट मेथड फॉर अ पर्टिकुलर कैपेसिटर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपने क्या किया, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब उसमें ना कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, तो वहां पे सिर्फ एक ही क्वांटिटी जो चेंज नहीं होगी वो होगा चार्ज। चार्ज सिर्फ चेंज होगा, बाकी सारी क्वांटिटी चेंज होगी। बट यहां एक छोटा सा करेक्शन है, जो कैपेसिटेंस है ना वो इंक्रीज होगा, सिर्फ कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, बाकी सारी वैल्यूज क्या होगी, डिक्रीज होगी। पोटेंशियल K बाई टाइम्स डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, K टाइम्स डिक्रीज होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स डिक्रीज होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है विद कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से या 1 मार्क का क्वेश्चन होगा
क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड्स है जो आपको ना इंफॉर्मेशन देंगे। तो मैं एक बार इनको ना प्रॉपरली लिख देता हूं सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है, रिवीजन के हिसाब से, क्योंकि ये चीजें आपको अभी समझ में आ जाएंगी तो बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक इनसाइड किया और पावर सप्लाई वही रहने दिया, पावर सप्लाई अगर मैंने वही रहने दिया तो V डैश का वैल्यू V होगा और E डैश का वैल्यू E होगा, मतलब पुरानी वैल्यू ही कंटिन्यू हो जाएगी। बट जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल कैपेसिटेंस इनटू K, और जो चार्ज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, नया चार्ज, ओरिजिनल चार्ज इनटू K, और जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगा, ओरिजिनल एनर्जी इनटू K। बट अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया और डाइलेक्ट्रिक हमने पुट किया तो क्या होगा, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेम रहेगा वो क्या होगा, चार्ज, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो सेम रहने वाले को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये सेम रहेगा। अब क्या होगा, कैपेसिटेंस में क्या होगा, कैपेसिटेंस में इंक्रीज बाय K टाइम्स, जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज बाय K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज बाय K टाइम्स, एनर्जी जो होगा वो होगा डिक्रीज बाय K टाइम्स। सो आज का जितना भी टॉपिक हमने किया वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान रखना है एक पर्टिकुलर पैटर्न का। इस केस में मैंने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है वहां पे, तो अगर एनर्जी की वैल्यूज होगी तो आप उसको पुट कर सकते हो। कभी कभी ये क्वेश्चन में क्या होता है कि वो ना कैपेसिटेंस की वैल्यू C देते हैं, यहाँ पे C देते हैं, बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू K हो गया, तो वैसे होगा C1 का वैल्यू C हो गया, V1 का वैल्यू V होगा, और Q1 का वैल्यू क्या होगा, वो CV होगा, ठीक है, और वैसे ही C2 का वैल्यू आपको मिलेगा। तो उसके लिए जो एनर्जी, कभी कभी एनर्जी का रेशियो पूछा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फाइनली CV स्क्वायर हो जाएगा। फिर एंड में क्या बोलते हैं कि जब फाइनली में क्या होगा, तो जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा वो CK हो जाएगा और पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, V ही रहेगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, CVK हो जाएगा जो Q का वैल्यू है। तो अगर जब एनर्जी पूछ रहा है ना, एनर्जी के लिए अगर आप ना Q की वैल्यूज नहीं भी निकालते हो तो भी चल जाएगा। एनर्जीज के लिए ना अगर कभी क्वेश्चन में पूछा एग्जाम में, एनर्जीज में आप Q की वैल्यू नहीं भी निकालते हो तो भी चल जाता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। विदाउट फाइंडिंग वैल्यू ऑफ Q यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी। बट अगर मान लो चार्ज और पोटेंशियल पूछा है तो देन यू नीड टू फाइंड आउट। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस में ज्यादा डिफिकल्टी फील नहीं होगी। आप एफर्ट डालेंगे तो आपको 100% श्योर है कि समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।